Namaskar, good morning, and a warm welcome to the most awaited event of the year, the annual function. The theme of today's annual function is Keshav Katha. Annual Day event is not just a carnival of a day, but celebrating the journey of a year. Today's morning is to raise the toast to the achievements of our students. Learning is their journey. Let them navigate, push them to explore, watch them discover, encourage their questions, allow them to struggle, support their thinking. It gives me immense pleasure. I, Rupal Kantharia, class teacher of 2nd B, with my co-host Chelsea Virani and Karthik Kalsaria, to welcome you all to this star-studded event of today. दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हर्तु मे पापं संध्यादीप नमोस्तुते संध्यादीप नमोस्तुते. I fold my hands before the Lord, the maintainer of this creation in the form of this light. I adore this light, which destroys all the pains resulting from my omissions and commissions. Keeping up with the tradition, let's give an auspicious start to today's event by lighting the lamp. I request our today's guest, Dara ma'am, to please come forward. And I also request our headmistress Beenal ma'am and Sunita ma'am, Fennel sir, to escort the dignitaries for the same. या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति नमोस्तुते. It is rightly said, when prayers go up, blessings come down. When the blessings are melodious, saviors are left with no choice to shower the blessings. So here are the students of standard 3rd to 5th presenting a prayer song. Please welcome them with a big round of applause. Like a sunset that follows every movement of the sun.
I request our principal, sir, to please felicitate our today's guest, Dhara Rajaguru ma'am, who have graced the occasion with her presence. It is the time to cheer, to shine, to inspire, and to be inspired. Today, we are here to celebrate the annual day of our school. And as you all know, the theme for today's function is Keshav Katha, Niyati Krishna Ki. He is the supreme personality of Godhead and also an historical person who appeared on earth in India 5,000 years ago, who played exactly like a human being, but his activities were unparalleled. So, to set the tone of today's event, let me invite on stage the first act of today by our tiny tots of Senior KG Snowy, presenting on Krishna Mere Little Star. Please welcome them with a huge round of applause. And this performance is choreographed by Sheetal Parekh ma'am and Nikita Desai ma'am. Please welcome them. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. अरे गुड़िया, ये तुम क्या गा रही हो? भैया, मैं पोयम गा रही हूँ। तो क्या तुम्हें लिटिल कृष्णा का भजन नहीं आता? नहीं भैया, क्या आप मुझे लिटिल कृष्णा का पोयम सिखा देंगे? हाँ, जरूर सिखाऊंगा, पर तुम्हें भी मेरे साथ गाना पड़ेगा। मैं जरूर गाऊंगी। Twinkle twinkle little star, कृष्णा मेरा सुपरस्टार। Twinkle twinkle little star, कृष्णा मेरा सुपरस्टार। सूरज चांद सितारे गाते, सूरज चांद सितारे गाते, नंदलाला की जय जयकार। Twinkle twinkle little star, कृष्णा मेरा सुपरस्टार। Twinkle twinkle little star, कृष्णा मेरा सुपरस्टार। सूरज चांद सितारे गाते, सूरज चांद सितारे गाते, नंदलाला की जय जयकार। Twinkle twinkle little star, कृष्णा मेरा सुपरस्टार। भैया भैया, ये लिटिल कृष्णा कौन है और कहाँ रहता है? वृंदावन में है रहता कन्हैया, कृष्ण कहे तो कोई बंसी बजैया। वृंदावन में है रहता कन्हैया, कृष्ण कहे तो कोई बंसी बजैया। वंडरफुल इसका दरबार, वंडरफुल इसका दरबार, नंदलाला की जय जयकार। Twinkle twinkle little star, कृष्णा मेरा सुपरस्टार। Twinkle twinkle little star, कृष्णा मेरा सुपरस्टार। सूरज चांद सितारे गाते, सूरज चांद सितारे गाते, नंदलाला की जय जयकार। Twinkle twinkle little star, कृष्णा मेरा सुपरस्टार। थोड़ी सी दुआएं अता कीजिए, इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। Let us all move ahead with our show. He is the 8th avatar of Lord Vishnu. His life and teachings continue to inspire millions of people around the world. He is also called the different names like Gopala, Madhava, Keshava, Kanha, Sham, and many more. Yes, I know you all have guessed it right, the God of love, compassion, protection, Lord Krishna. The spirit of Keshav Katha resonate our heart all the way from Gokul.
folks of Nandagaon will take you on a roller coaster ride with their mesmerizing performances. I promise that with every performance, excitement of this celebration is going to take you all in some different world. कि नियत और नियति से बड़ा कुछ नहीं होता। नियति क्या है? कुदरत के कानून को नियति कहा जाता है। ये सृष्टि नियति से बंधी हुई है। हर एक के जीवन में नियति का बहुत महत्व होता है। नियत से बनी है नियति। अक्सर आपने बोलचाल की भाषा में सुना होगा कि नियति को यही मंजूर था, मतलब कोई प्राकृतिक आपदा या फिर कोई नुकसान आदि नियति से ही होता है। आपके जीवन में प्रकट होने वाली सभी चीजें, व्यक्ति, घटनाएं एवं परिस्थितियां सब नियति हैं। नियति सब कुछ तय नहीं करती, इसके लिए कर्म करना जरूरी है। जैसा कर्म वैसा फल। कर्म के बाद नियति तय करती है कि इस कर्म का फल देना है या नहीं। पल भर में जिंदगी बदल देने का सामर्थ्य रखती है ये नियति, लेकिन नियति के लिए कर्म करना भी जरूरी है। मैं नियति हूँ और आज श्री कृष्ण की कथा सुनाने जा रही हूँ। 16 कलाओं में निपुण भगवान श्री कृष्ण को लीलाधर भी कहते हैं। श्री कृष्ण विष्णु भगवान के 8वें अवतार थे। श्री कृष्ण का जन्म ही धर्म रक्षा के लिए हुआ था। श्री कृष्ण ने पूरी दुनिया को प्रेम का संदेश दिया है। तो आइए करते हैं श्री कृष्ण की कथा का रसपान। Now I request our little host of today's event, Karthik Kalsaria and Chelsea Virani, to take up the podium. मौसम बदलने लगा और बरसात आने लगी। मौसम बदलने लगा और बरसात आने लगी। गोकुल की याद रह रह कर सताने लगी। जब मैंने छू कर देखा बारिश की बूंदों को, तो हर बूंद में कान्हा की तस्वीर नजर आने लगी। तो हर बूंद में कान्हा की तस्वीर नजर आने लगी। मैं मथुरा के कारागार में कृष्ण जन्म की कथा सुनाने जा रही हूँ। कृष्ण जन्म का मुख्य उद्देश्य कंस का अंत करना था। भगवान बाल गोपाल को भी माँ की गोद से कारागार में जन्म लेना पड़ा था, जहाँ उनके पिता वासुदेव और माता देवकी को कंस से बंधे बना लिया था। कृष्ण का पूरा जीवन जीता, दिलचस्प घटना और चमत्कारों से भरा है। उनके जन्म की कहानी भी इतनी अद्भुत है। श्री कृष्ण का जन्म धरती पर से कंस रूपी अधर्म को मिटाने के लिए और फिर धर्म और अधर्म का भेद समझाने के लिए हुआ था। उनका जन्म कारावास में भले ही हुआ था, परंतु उन्होंने धर्म और कर्म की सही शिक्षा देकर जगत का कल्याण किया। कृष्ण जन्म लीला के माध्यम से कृष्ण ने संदेश दिया है कि समय कितना ही कठिन क्यों ना हो, आप साहस दिखाएंगे तो सब चीज़ें आपके अनुकूल हो जाएगी। अगली प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं जूनियर के जिश्नोई के लिटिल स्टार, जिनको कोरियोग्राफ किया है मेघा पटेल मैम ने। मैं भी कैसी माँ हूँ, एक के बाद एक 7 पुत्र की हत्या मेरे आँखों के सामने हुई और मैं अभी तक जीवित हूँ। धीरज से काम लो देवी, अब हमारी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। मैं भी अपने आप को ये समझाती रहती हूँ आर्यपुत्र, पर माँ ये समझ नहीं पाती। मैं अपने 7 पुत्रों को खो चुकी हूँ आर्यपुत्र। धीरज शब्द का अर्थ है साहस। बस ये सोच लो कि हमारी ये कठिन यात्रा समाप्त होने वाली है। तुम्हारे गर्भ में हमारा ये 8वां पुत्र है। ये बात नहीं है आर्यपुत्र कि मुझे भविष्यवाणी पे विश्वास नहीं है, किंतु मैं तो माँ हूँ। अपने बेटों पर रोने का मुझे अधिकार है। मुझे रोने पर मत रोको आर्यपुत्र। शांत हो जाओ,
शांत हो जाओ देवकी। छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना। कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ। आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। देख मेरी नजर आ जाना। क्या बताऊं ना कहाँ हूँ मैं, यहाँ उड़ने को मेरे खुला आसमां है। तेरे किस्सों जैसा बोला सालों ना जहाँ है, यहाँ सपनों वाला मेरी पतंग हो बेफिक्र उड़ रही है माँ। डोर कोई लूटे नहीं, बीच से काटे ना। आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। देख मेरी नजर आ जाना। वसुदेव, ये है बालक मानव जाति का उज्जवल भविष्य है। इसे यमुना पार ले जाओ और गोकुल में अपने मित्र नंदराय के यहाँ छोड़ आओ। That was truly mesmerizing. A big round of applause for them. चारों ओर उत्सव छाया संग अपने जन्माष्टमी का। मेरे कान्हा का जन्म दिवस बरखा के संग हरियाली लाया। जब जब धरती पर पाप और अधर्म हद से ज्यादा बड़ा है, भगवान ने धरती पर अवतार लिया है। भगवान विष्णु के किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अवतारित हुए। श्री कृष्ण ने अपने जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव पर चमत्कार दिखाया। श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े कई किस्से हमें अधर्म और पाप के खिलाफ सही मार्गदर्शन देते हैं।
कंस जैसे दुष्टों के पाप कर्म बढ़ जाने पर पाप कर्म के भार से बोझिल पृथ्वी ने देवताओं के साथ भगवानों से मदद की गुहार लगाई। तब श्री हरि ने मंद मंद मुस्कुराते कहा, तुम भी वृंदावन में गोप ग्वालों के रूप में अवतारित हो, मेरी लीला में सहयोगी बनो। मैं भी सही समय पर वासुदेव देवकी के वहाँ अवतार लूँगा। समाज में जब अधर्म बढ़ गया, प्रजा त्राहिमाम होने लगी, असुरों के अत्याचार से सर्वत्र भय व आशंका का घोर अंधकार छा गया। तब भाद्रपद मास में उस अंधकारमय अष्टमी रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण अवतार हुआ। जिस दिन वह निर्गुण निराकार माया को वश करने वाले जीव मात्र के परम पावन भगवान स्वयं प्रकट हुए, वह पावन दिन जन्माष्टमी कहलाता है। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। जूनियर केजी डोनल क्लास के बच्चे अगली प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं कृष्ण जन्म लीला, जिनको कोरियोग्राफ किया है जिल सिंडे मानसी मोरे मैम ने। सपनोरी ये किलकारी रे, वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा परियारी रे। शक्कर भाको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे। मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवाड़ो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे,
परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग। श्री कृष्ण की माखन लीला, कल्या उद्धर, गोवर्धन धारण, रास लीला आदि अनेक लीलाओं से यशोदा मैया को अपार सुख प्रदान किया। बालक श्री कृष्ण बालकृष्ण सभी का मन मोह लिया करते थे। नटखट स्वभाव के चलते यशोदा माँ के पास उनकी हर रोज शिकायत आती थी। बालक श्री कृष्ण का अपनी माता से शिकायत करना बड़े सुंदर ढंग से बताया गया है। कितना सुंदर दृश्य है। माँ यशोदा प्रभु श्री कृष्ण को पालने में झुलाती है, कभी प्यार से पुचकारती है और कभी सुंदर गीत गाती है। माता यशोदा के प्यार और दुल्हार ने उन्हें एक आदर्श माता का उदाहरण बना दिया। जब भी हम वात्सल्य और स्नेह की बात करते हैं तो ज़हन में यशोदा माता की ममतामयी छवि उभर जाती है। उन्होंने पूरे संसार के सामने यह उदाहरण प्रस्तुत किया है कि जन्म देने वाली से पालने वाली माता का दर्जा ऊंचा होता है। माता यशोदा ने अपने निश्चल स्नेह की ताकत से दिल के रिश्ते से भी ज़्यादा मजबूत बना दिया। माता देवकी का जो दुल्हारा था कम नहीं यशोदा को प्यारा था। माता देवकी का जो दुल्हारा था कम नहीं यशोदा को प्यारा था। गोपिया ग्वाल बाल और गोवे, कृष्णा आँखों का सबका तारा था, कृष्णा आँखों का सबका तारा था। और नेक्स्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम क्लास नर्सरी मिकी, जिनको कोरियोग्राफ किया है धारा कोटड़िया, रुचिता गज्जर मैम ने। कन्हैया न्यारा कन्हैया, गोकुल में सबका प्यारा कन्हैया। ठुमक 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 नाचे कन्हैया, पैजनिया छम छम बाजे रे, छम 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 कान्हा के संग सारी दुनिया नाचे रे, सारी दुनिया नाचे रे, सारी दुनिया नाचे रे, छम 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 कान्हा के संग सारी दुनिया नाचे रे। सदा से टांगण वंदिन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे, प्रेमे अलंगिन आनंद पूजन भावे वाळिन म्हणे नावा। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या तरुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा, करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि, गिरिधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे।
पृथ्वी पर जब जब बढ़ता है आतंक और अत्याचार, पृथ्वी पर जब जब बढ़ता है आतंक और अत्याचार, तब लेते हैं श्री हरि अवतार। श्री कृष्ण का स्वरूप बांसुरी और मोरपंख के बिना अधूरा है। भगवान विष्णु के अवतारों में सिर्फ श्री कृष्ण ने मोर मुकुट धारण किया है। श्री कृष्ण का मोरपंख पहनना केवल प्रेम या उसके प्रति लगाव नहीं है, बल्कि इसके जरिए भगवान ने कई संदेश भी दिए हैं। वर्तमान समय में भी मोरपंख का बहुत महत्व है। इसे नवग्रह का प्रतीक कहा जाता है। मोरपंख घर में रखने से सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। प्रेम का प्रतीक है मोरपंख। प्रेम का प्रतीक है मोरपंख। जीवन के सभी रंग है मोरपंख। मोरपंख के कई सारे रंग होते हैं। श्री कृष्ण का जीवन कभी एक जैसा नहीं रहा। उनके जीवन में सुख और दुख के अलावा कई अन्य तरह के भाव भी थे, इसलिए वह हमेशा मोरपंख सजा रखते थे। जन्म लेते ही माता के वियोग में दुख से शुरू हुआ जीवन, राधे के असीम प्रेम से भरा जीवन, गीता के सार तक का सफ़र, श्री कृष्ण के जीवन के हर रंग को दर्शाता है मोरपंख। शायद इसलिए श्री कृष्ण को बहुत भाता है मोरपंख। तो आइए हम कथा सुनते हैं श्री कृष्ण के जीवन में मोरपंख की। अगली प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं नर्सरी जहरी के नन्हे मुन्ने बच्चे, जिनको कोरियोग्राफ किया है तनु पटेल मैम, मधुराई बोदार मैम ने। मोर पंख माथे पे जड़ा और होठों पर मुस्कान रे, रास रचाए बंसी बजाए वो राधा का श्याम रे। मोर पंख माथे पे जड़ा और होठों पर मुस्कान रे, रास रचाए बंसी बजाए वो राधा का श्याम रे। खेल खेल में जीतेगा वो पाप का हर संग्राम रे, हर दिल हर मुख गाएगा उसका ही अब नाम रे। गिरधारी मोहन गोपाला कान्हा और घनश्याम रे, नारायण हरि बोल मुकुंदा संगता ओ बलराम रे। खेल खेल में चूर करेगा झूठा हर अभिमान रे, हर दिल हर मुख गाएगा उसका ही अब नाम रे। यमुना किनारे कान्हा गैया चराता है, गोकुल को प्रीति की धुन पे नचाता है। जमुना किनारे कान्हा गैया चराता है, गोकुल को प्रीति की धुन पे नचाता है। दंभियों घमंडियों को सबक वो सिखाता है, पापियों को दानवों को धूल में मिलाता है। चोर है चित चोर है वो माखन चुराता है, उंगली पे अपनी गोवर्धन उठाता है। कृष्ण 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 बोलो रे, कृष्ण
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। जैसा कि हम जानते हैं कि कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा गया है। श्री कृष्ण की लीलाओं की शुरुआत उनके जन्म से ही हो जाती है। कन्हैया की लीला प्रेम और आध्यात्म का एक धर्म शास्त्र है। श्री कृष्ण के व्यक्तित्व के अनेक पहलू हैं। वे माँ के सामने रोटी की लीलाएं करने वाले बाल कृष्ण हैं, तो अर्जुन को गीता का ज्ञान देने वाले योगेश्वर श्री कृष्ण। कृष्ण बचपन से ही बहुत चंचल और शरारती थे। उनकी शैतानियों की कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध है। कृष्ण को मक्खन बहुत पसंद था। कृष्ण अपने ही घर और पड़ोसियों से मक्खन चुरा कर खाते थे। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में भी गोवर्धन पर्वत को भी अपनी एक उंगली पर उठा लिया। राक्षसी पुतना का वध भी उन्होंने शिशु अवस्था में करके अपनी बाल लीला का परिचय दिया। अपने माता यशोदा को अपने मुंह में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करवाए और अपने विराट स्वरूप के दर्शन करवाए। भगवान श्री कृष्ण की एक एक लीला मनुष्य के लिए परम मंगलमय और अमृत स्वरूप है। मटकी फोड़े माखन खाए, मटकी फोड़े माखन खाए, फिर भी सबके मन को भाए। राधा के वो प्यारे मोहन, महिमा उनकी दुनिया गाए, महिमा उनकी दुनिया गाए। वेलकम टू अवर लिटिल टाइनी टॉप्स फ्रॉम क्लास जूनियर के जिमिकी, जिनको कोरियोग्राफ किया है शिल्पा कोठिया, पायल राठौड़ मैम ने। जय गोविंदा जय गोपाला, देखो आयो रे देखो आयो जय गोविंदा जय गोपाला। गोकुल धाम विरज का वासी कान्हा नंद किशोर, गोकुल धाम विरज का वासी कान्हा नंद किशोर। कोई कहे सच चोर, कोई कहता माखन चोर। चोर चोर माखन चोर, यही है चलिया माखन चोर। गोकुल धाम विरज का वासी कान्हा नंद किशोर। मटकी फोड़ी जिसमें हमारी वो नहीं कोई और। चोर चोर माखन चोर, यही है चलिया माखन चोर। नेहाल गावे गैया मुझको आप ही दूध पिलाती, पकड़ पकड़ गोकुल की गोपिन माखन आप खिलाती। झूठो दोष लगावे साथी मिठा बतावे शोर। चोर चोर माखन चोर, यही है चलिया माखन चोर। नहीं मैं माखन चोर। ला 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 कितनी खूबसूरत है राधा की ख्यालों की दुनिया। माखन चोर से शुरू होते हैं कृष्ण पर खत्म। कृष्ण माखन चुराया करते थे और माखन ही गोपियों की आजीविका थी। ऐसे में वे कृष्ण की माता से शिकायत करती थी,
पर कृष्ण मासूम बनकर उन्हें फिर से मना लेते थे। राधा कृष्ण के प्रेम को पूरी दुनिया जानती है। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी अपने आप में प्रेम की परिभाषा है। प्रेम से परमात्मा को भी पाया जाता है। प्रेम वो अमृत है जो किसी के हृदय में भर जाता है, तब उसके अंदर के सारे गुण नष्ट हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि राधा ने कृष्ण से इतना प्रेम किया था कि वृंदावन की मिट्टी में प्रेम समा गया। गोपियाँ जब शिकायत करती है तो कन्हैया बोलता है कि माँ, हमारे यहाँ दूध और मक्खन की कमी है क्या? शाम की बंसी जब ही बजी है, शाम की बंसी जब ही बजी है, राधा के मन में प्रीत जगी है, राधा के मन में प्रीत जगी है। ओ मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। वे अपने भोलेपन से कोई भी शरारत करते और फिर माँ यशोदा से वार्तालाप करते तो माँ यशोदा जी को अत्यंत आनंददायक लगता था। तो आइए स्वागत करते हैं जूनियर केजी टॉम एंड जेरी क्लास का, जिनको कोरियोग्राफ किया है श्री प्रिया सुरेश, लीजा पांडा, करिश्मा डोंडा, जानवी नाई मैम ने। राधा तथा कृष्ण ने ब्रज में अनेक सुमधुर लीलाएं की, जैसे कि देखो, आज फिर से हमारी मटकी टूटी हुई है। यह जरूर उस नटखट कान्हा की ही शरारत है। चलो आज हम सब जाकर उसकी शिकायत यशोदा मैया से करते हैं। हाँ हाँ चलो। यशोदा मैया, यशोदा मैया, अरे ओ यशोदा मैया, क्या हुआ? देखो आपके कान्हा ने क्या किया है। आज फिर से उसने हमारी मटकी तोड़ी और सारा माखन चुरा लिया। क्या
कान्हा ने माखन चुराया, परंतु वह तो प्रातः काल से यही है। कान्हा, अरे ओ कान्हा। हाँ मैया। क्या तूने इनका माखन चुराया? मैंने और इनका माखन चुराया? आपके हाथों से बना स्वादिष्ट माखन छोड़कर मैं क्यों इनका माखन चुराने लगा? नहीं मैया, ये झूठ बोलता है। कल इसने विशाखा की भी मटकी चुराई थी। क्या राधा, मैं झूठ बोल रहा हूँ? कृष्णा, तुम सब तो हमेशा ही मेरे कान्हा की शिकायत करती रहती हो। क्या हमारे घर में माखन की कोई कमी है जो मेरा लाला तुम्हारे हाथों से बना माखन चुराए? ठीक है मैया, अब तो हम तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ कर ही तेरे पास लाएंगे। नटखट जमुना के तट पर कुछ तो चुराए, हाय मैया। दिल चुराए, नींद चुराए, चैन चुराए, हाय मैया। कैसे मैं जाऊं घर अपने, सब लाज शर्म में छोड़ी रे। कैसे कहूँ किस नटखट ने किया माखन चोरी रे। मैया यशोदा मोरी गगरी से जमुना के पुल पर माखन हाँ कोई ते माखन चुरा ले गया। खाते हो? हमारे घर में तो बहुत सारा मक्खन है। पर मैया, मुझे मक्खन चुरा के खाना बहुत अच्छा लगता है। अब तुम्हारी शिकायतें बहुत बढ़ गई है। अब तुम्हें मक्खन नहीं मिलेगा और तुम कल से गैया चराने चले जाना। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी और अब ना तो तुम्हें मक्खन खाने मिलेगा। कल से तुम बाकी ग्वालों के साथ
गैया चराने जाओगे? माखन, मिश्री, मलाई के साथ भगवान के बचपन से जुड़े हर चीज़ को भक्तों द्वारा याद किया जाता है। ये बाल कृष्ण की महिमा के आधारित है। हालांकि बाल कृष्ण का लालन पालन ग्वाला के घर हुआ था। ऐसे में यह भजन बाल कृष्ण के जीवन के बारे में बताते हैं। यह लोकप्रिय भजन है। गाय का महत्व और कान्हा की सारी शरारतें हैं। भगवान श्री कृष्ण को गाय अत्यंत प्रिय है क्योंकि गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। अगली प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं नर्सरी टॉम क्लास के गोकुल का ग्वाला, जिनको कोरियोग्राफ किया है सुषमा माली एंड महेश्वरी वाघेला मैम ने। सूरत मोहिनी मूरत आन बसी दिन नैनन में, बाल बाल संगैया जलाने चले कन्हैया वन में। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू सुमेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू सुमेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल। कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम वरुण मेरो मदन गोपाल। कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल। कान्हा ऐसे ही धीरे धीरे बड़े होने लगे। कृष्णा अपने सारे मित्रों के साथ यमुना नदी के तट पर खेल रहे हैं।
खेलते खेलते उनकी गेंद यमुना नदी में गिर जाती है। जिस बच्चे की गेंद गिरती है, कान्हा, तूने मेरी गेंद नदी में फेंक दी, अब तू ही लेके आ। नहीं कान्हा, इस नदी में कालिया नाग रहता है, बहुत बड़ा, जहरीला और खतरनाक है। तू इस पानी में बिल्कुल मत जाना। पर कन्हैया कहाँ किसी की सुनने वाले थे। वो तो यमुना नदी के पानी में कूद पड़े। नदी में कूदते ही कालिया नाग जाग उठता है और कान्हा पर प्रहार करता है। पर कन्हैया भी कहाँ कम थे, वो कालिया से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कान्हा और कालिया में भयंकर लड़ाई होती है, कभी कान्हा ऊपर तो कभी कालिया। मुझे जीवन दान दीजिए। ठीक है, पर तुम वादा करो कि आज से तुम यमुना नदी छोड़कर कहीं दूर दरिया में चले जाओगे। उस दिन के बाद कालिया अपनी सांप की टोली लेकर यमुना नदी छोड़कर दूर चला गया और यमुना नदी का पानी पीने लायक हो गया। तो बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। संगीत है श्री कृष्ण, सुर है राधे, शहद है श्री कृष्ण, मिठास है श्री राधे, पूर्ण है श्री कृष्ण, परिपूर्ण है राधे, आदि है श्री कृष्ण, अनंत है श्री राधे। रासलीला का वास्तविक अर्थ नृत्य, गान एवं अभिनय तीनों कलाओं के समावेश से है। रासलीला सभी लीलाओं से प्यारी है क्योंकि भगवान इसमें भक्तों से मिलकर एक साथ खुशियाँ मनाते हैं। अतः रासलीला जीवात्मा का परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करने की व्याख्या है। रासलीला कोई साधारण नृत्य नहीं है, ये भक्तों और भगवान का मिलन है। राधा के दिल की चाहत है कृष्णा, राधा की विरासत है कृष्णा। राधा के दिल की चाहत है कृष्णा, राधा की विरासत है कृष्णा। कितने भी रास रच ले कान्हा, फिर भी दुनिया तो यही कहेगी राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। भगवान की रासलीला आत्मा की लीला है, अपने साथ अपनी ही क्रीड़ा है। जैसे बालक अपने प्रतिबिंब को जल या दर्पण में देखकर उसके साथ क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार भगवान अपने ही प्रतिबिंब रूप में गोपियों के साथ रमण करते हैं।
रासलीला सजे धजे श्री कृष्ण को अलग अलग रूप में रखकर राधा के प्रति प्रेम को व्यक्त करती है। रासलीला में छिपा है श्री कृष्ण का अलौकिक संदेश। प्रेम को भी खुद पर गुमान है, प्रेम को भी खुद पर गुमान है, क्योंकि राधा कृष्ण का प्रेम हर दिल में विराजमान है, क्योंकि राधा कृष्ण का प्रेम हर दिल में विराजमान है। अगली प्रस्तुति रासलीला लेकर आ रहे हैं सीनियर केजी जहरी के राधा कृष्ण, जिनको कोरियोग्राफ किया है नेहल डोबरिया, डिम्पल वगासिया मैम ने। राधे संग नंदलाल, राधे संग नंदलाल, राधे संग नंदलाल, ये रचाए रास कण कण में है उल्लास, कण कण में है उल्लास, कण कण में है उल्लास, ज्योतिष में है प्रकाश, दिव्यता भरी उदास, फैली है मंद मंद फूलों की मधुर सुवास, नागर संग आज झूमे गोकुल समान, गोपिन बलिहारी जाए भूली सब लोक लाज, भूली सब लोक लाज, भूली सब लोक लाज। बांसुरी बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। जमुना तट पे रास रचेगा, जमुना तट पे रास रचेगा, प्रीत विराजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। के संग में आज रास रचे कृष्ण कान्हा, कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। आई पूनम की प्यारी रात, रास रचे कृष्ण कान्हा, कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। नाचे राधा जी सुध बुध गवा के, संग कन्हैया जी का खाके। नाचे राधा जी सुध बुध गवा के, संग कन्हैया जी का खाके। वो तुझे उत्सव में जग सारा आज, राधा कृष्ण कृष्ण राधा। पूनम की प्यारी रात, राधा कृष्ण कृष्ण राधा। कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा।
तो मुझे ऐसा लगा कि पूरे वृंदावन की गोपियों और श्री कृष्ण आ गए हैं। भगवान ने यह बहुत से अवतार लिए हैं। हमेशा से जीवन की नींव धर्म पर ही टिकी हुई है। धर्म का नाश करने के लिए असुर या अहंकारी लोगों ने अपने शक्ति पर बल पर विनाश करना चाहा। तब धर्म और मनुष्य जाति की रक्षा के लिए भगवान ने समय समय पर अवतार लिया है। ये 10 अवतार उनके अवतारों की सूची है जिनमें वे मानवता की सहायता के लिए आए थे। भगवान विष्णु के 10 अवतार थे: मत्स्य, वराह, कच्छप, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान हो जाता है तब मैं दुष्टों के विनाश के लिए विभिन्न युगों में माया का आश्रय लेकर उत्पन्न होता हूँ। ऐसा नहीं कि भगवान हमेशा प्रकट ही हुए हैं, उन्होंने जन्म भी लिया है ताकि वो धर्म की रक्षा के साथ साथ मनुष्य को जीवन का ज्ञान, शिक्षा और सीख भी दे सके, ताकि मनुष्य किसी भी कठिन परिस्थिति से बाहर निकल सके। भगवान के हर अवतार से हमें कोई ना कोई सीख है, बस हमें उन शिक्षाओं को अपने जीवन में लाना है। जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब प्रभु धीरी विविध शरीरा, हर ही दयानिधि सज्जन पीरा। इन पंक्तियों में कहा जाता है, जब जब धर्म की हानि होती है, असुर दुराचारी लोगों का अधर्म दुराचार बढ़ जाता है, तब कृपा निदान भगवान विष्णु विविध शरीर यानी अवतार धारण कर और धर्म की रक्षा करते हैं। लेट अस वेलकम सीनियर केजी टॉम क्लास ऑन द स्टेज, जिनको कोरियोग्राफ किया है वैशाली चौहान मैम ने। चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत्
राजा राम, राम राम जय सीताराम। रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानंदा। रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानंदा। हे केशव हे माधव हे गोविंदा, रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानंदा। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. Outstanding performance. अधर्म और अत्याचार होते हुए देखकर जो लोग सिर झुका लेते हैं उनके सिर एक दिन अवश्य कटते हैं। महाभारत इस बात का साक्षी है। ये कथा है अद्भुत श्री कृष्ण की। जगत गुरु गिरधारी कहे या रणछोड़, श्री कृष्ण के जितने नाम है उतनी ही कहानियाँ। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वह है श्री कृष्ण। कर्म का कोई विकल्प नहीं, ये सिद्ध किया है श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण कहते, मैं हर हाल में आता हूँ। जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी, जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी, दोनों ही परिस्थितियों में मेरा आना निश्चित है। श्री कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो संसार में आए हैं तो जब तक जीवन है आपको संघर्ष करना ही होगा। श्री कृष्ण एक बहुत नटखट बच्चे हैं। वे एक बांसुरी वादक है और बहुत अच्छा नाचते भी है। वे अपने दुश्मनों के लिए अजय योद्धा है। सभी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ श्री कृष्ण की लीलाएं दुनिया भर में विख्यात है। इनके जैसी मनमोहक और अनुपम लीला और किसी की नहीं है। श्री विष्णु के 10 अवतारों में से 8वां अवतार श्री कृष्ण अवतार में स्वर्धिक अनुपम और अद्वितीय है। श्री कृष्ण की लीला आध्यात्म की सबसे प्रसिद्ध कथाओं में एक है। कृष्ण को लोग अलग अलग रूप में देखते थे, तो आइए एक झलक देखते हैं श्री कृष्ण की लीलाओं की। खुद को कमज़ोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो पूरी निष्ठा से, अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब श्री कृष्ण पर छोड़ दो। Get ready for a heavy dose of entertainment. Welcome our students from class Senior KG मिक्की एंड डोनाल्ड, जिनको कोरियोग्राफ किया है सेजल देसाई, जैसल हलपति, काजल काथरोटिया मैम ने। मेरा
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राधे राधे बोल राधे 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 राधे। राधे राधे बोल राधे 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 राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे। कृष्णा 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 है, कृष्णा 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 है। रामा राघव रामा राघव रामा राघव रक्षमा, रामा राघव रामा राघव रामा राघव रक्षमा। कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि मां, कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि मां। कृष्णा 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 है, कृष्णा 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 है। रामा राघव रामा राघव रामा राघव रक्षमा, रामा राघव रामा राघव रामा
wish to extend my heartfelt thanks for your wonderful, rich and highly energetic performance. Thank you everyone. श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा मैं कल की रूप में फिर अवतरण करूंगा। श्री कृष्ण ईश्वर होकर भी साक्षी भाव से नियति के दृष्टा बने, सब स्वीकारते हुए सहज बने रहे। श्री कृष्ण सिखाते हैं जीवन में कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों ना हो, उसका मुकाबला मुस्कुराते हुए ही करना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्मों का पालन करते हुए धर्म परायण रहना चाहिए। तो बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। Now I request our headmistress Beenal Desai ma'am to end the event with few words of gratitude. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता के चौथे अध्याय के इस 8वें श्लोक का मतलब तो हम सब जानते हैं। धर्म की जब हानि होती है, विनाश का कार्य होता है और अधर्म बढ़ता है, तब पृथ्वीवासियों का कल्याण करने भगवान जन्म लेते हैं। आज इस सर्व जन कल्याण की भावना के साथ मैं बीनल देसाई यहाँ उपस्थित सारे महानुभावों, सारे अभिभावकों का आभार व्यक्त करने यहाँ प्रस्तुत हुई हूँ। बिगनिंग विद द मोस्ट रेवरेंड बापूजी, जिनकी दीर्घ दृष्टि से आज पीपी सवानी संकुल सफलता की ऊंचाइयाँ सर कर रहा है। बापूजी, हम कृतज्ञ हैं आपके इस विद्या यज्ञ में जुड़ने मात्र से। अ स्पेशल मेंशन टू अवर ट्रस्टी श्री जयमीन राज्य गुरु। Sir could not be here today due to his prior commitments, but his presence is dearly missed. A special thanks to our guest for today, Dhara ma'am. Dhara ma'am, every program is a story, and thank you for being part of ours. Our principal, Dr. Harish Chandra Khichi. His ability to stay calm and composed is his way to motivate us to push our limits. He is a leader who believes in taking a back seat in the times of victory. Thank you, sir, for making us believe that we can do it and eventually things fall in place. A special thank you to Manoj sir for sparing time out. Manoj sir is the Commerce HOD with lot of responsibilities on his shoulders. Thank you, sir, for coming here. My speech will be incomplete before I thank the teachers. But before I thank the teachers, I need to thank a very special person, Miss Sunita Kapadia. She's the backbone of the team. Without her, I really don't know where I would be. So thank you, Sunita ma'am, for being that strong pillar and taking up every task so enthusiastically at the last moment. My speech will be incomplete if I do not thank my team of dedicated teachers. And I want to hear it louder for the teachers. Can I hear a loud round of applause? The journey has not been easy. To choreograph a 3-year-old and not one 3-year-old, 25 3-year-olds on the stage wasn't easy at all. So thank you, teachers. It is just because of your hard work and perseverance that I stand here today with my collars up and my head held high. Thank you so much. And most important people today, last but not the least, my children. Without them, nothing would have been possible. So वो बच्चे हमारे हैं, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए उन बच्चों के लिए. Thank you, children, for making us so proud today. कृष्णमय हुई इस सभा का इन 4 पंक्तियों से मैं समापन करती हूँ. साधिकार प्रेम से लिखेगी पत्र रुक्मणी, तो जानती है रुक्मणी कृष्ण स्वयं आएंगे. साधिकार प्रेम से लिखेगी पत्र रुक्मणी, तो जानती है रुक्मणी कि कृष्ण स्वयं आएंगे. आएंगे जो साथ पार्थ, तो पार्थ को है ज्ञात कि संग कृष्ण के वो युद्ध जीत जाएंगे.
जाएंगे भरी सभा से क्रोध में जब कृष्ण, तो सभा को है पता कि अब देव क्या बचाएंगे। बचाएंगे ये जानती है द्रौपदी पुकारती कि कोई आए ना आए, कृष्ण ज़रूर आएंगे, कृष्ण ज़रूर आएंगे। सबको जय श्री कृष्ण और एक बार जोरदार जयकारा लगाइए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल वीकेंड अहेड। Thank you, ma'am. With this, we come to an end with this marvelous event. There is an end to everything, but we believe that there is never an end, but always a beginning. Thus, to conclude today, I request to rise up for our national song. Vande Mataram. Vande Mataram. सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी